Hello friends, Namaskar. In this video we are going to discuss the relationship between the cell voltage and concentrations of the two solutions present in the two electrodes of the cell. And this relationship we can study with the help of a very well-known mathematical equation known as the Nernst equation. So basically Nernst equation relates E cell means the current voltage or voltage of current produced by a cell depends on the concentration of two solutions present in the two poles or two electrodes of the cell under consideration. For any cell, E0 cell is a constant. का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स में प्रेजेंट सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर रखेंगे, उस टाइम वो हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जांपल, लेट्स सी द मोस्ट कॉमन redox reaction occurring in the voltaic cell or Daniell cell. This is the reaction. Zinc is the metal present in the anode. It undergoes oxidation producing zinc positive ions. Then the electrons given by zinc metal reduce the cupric ions to copper metal. So this is a very famous redox reaction occurring in the Daniell cell. So if the concentration of this zinc positive ions is equal to 1 mole per liter, similarly copper positive ions is equal to 1 mole per liter, or if concentration of both electrodes is equal, in that case also E cell is equal to E0 cell. So then E cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. और हमारे पास यहाँ पर कैथोड के कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, तो ये प्लस 0.34 है, और जो एनोड है वो जिंक है, इसका होता है माइनस 0.76 एंड इस E0 is 1.1 volt. Now if concentration is not 1 mole per liter, so it is different, it has some other value. In that case the cell voltage is known as the E cell, and how this E cell is related to E0 cell. So the relations between E cell and E0 cell and the concentration of two electrodes is given by Nernst equation. So let's write the Nernst equation directly. हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं इक्वेशंस को, याद रखो देखिए हम ड्राइव नहीं करेंगे. So हमारे पास क्या होता है E cell equal to E0 cell. हमने यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई कर दिया है 0.0591/2 एंड लॉग हमारे पास क्या है देखिए, तो लॉग ऊपर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर ये मोलर कंसेंट्रेशन है. देखिए इधर हमारे पास जब लिखेंगे, जब यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कांस्टेंट लिखते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो यहाँ पर क्या ऊपर क्या आते हैं द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, नीचे क्या आता है द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स. तो इस रिएक्शन में आप देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, देखिए दिस जिंक पॉजिटिव इनटू कॉपर सॉलिड डिवाइड बाय जिंक सॉलिड इनटू कॉपर पॉजिटिव, और किसी भी सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 होता है. यहां से हम हटा देंगे इसको, राइट. सो के द इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू the molar concentration of this the anodic solution divided by the molar concentration of cathodic solution. And if there is no equilibrium in the reaction, then K is known as Q, the reaction quotient.
Q क्या है, जो हम क्या बोल रहे हैं रिएक्शन कोसेंट। एक्चुअली रिएक्शन कोसेंट एक नंबर होता है जो हमें क्या देगा कि जब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, so when the reaction is not under equilibrium, in that case the Q reaction quotient of the reaction gives us the relative amounts of the products and reactants of the redox reaction under consideration. And when there is equilibrium in the reaction, Q is equal to K, the equilibrium constant. Okay, please. यहाँ पर देखिए इसी हिसाब से ये लोग हमारे पास मतलब क्या लिया आप ये, so molar concentration of anodic solution divided by molar concentration of cathodic solution. यहां से हम इसको देखेंगे द्वारा कि this E cell is equal to E0 cell 0.0591 over N. N is the number of mole of electrons participating in the cell reaction or the indirect redox reaction occurring in the cell under consideration. Log again यहाँ पर क्या है, molar concentration of anodic solution divided by the molar concentration of cathodic solution. Cathodic solution. This is very, very important. Okay, let's see how the change in concentration of the two electrodes can change the cell voltage. This is very, very important. And if you consider the first reaction, the reaction occurring in the voltic cell. Okay, so we know that E0 cell is equal to 1.1 volt when the molar concentration of the two poles solution is 1 mole per liter. So we can get 1 by 1 log 1 0. तो क्या बन जाएगा, E cell is equal to E0 cell, right? Yes, here is very simple. And if let's say concentration is again 0.1, 0.11 again log 1 0. So again the E cell is equal to E0 cell. तो यहाँ पर क्या है, अगर ये कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर दोनों में, तब भी क्या है, जो सेल वोल्टेज है वो E0 सेल के बराबर आएगा। अगर ये कंसेंट्रेशन पर बराबर है, तब भी हमारे पास क्या है, जो E सेल है वो E0 सेल के बराबर है। क्योंकि बराबर होने पर क्या होगा, let's say ये 0.2 divided by 0.2, so it is 1 log 1 0, this becomes 0, and the cell voltage is equal to the E0 cell. But if this concentration is different, let's say this zinc positive ions, हमारे पास क्या है, let's say it is 0.01, and the copper positive ions, ये हमारे पास क्या है, molar concentration है, that is 0.1. तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर जिंक इसका एनोड है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, let's say 0.1. हमारे पास ये एनोडिक कंसेंट्रेशन इसमें क्या है, तो ई सेल क्या बनेगा यहाँ पर, ये हम लिखा यहाँ पर, ये सेल क्या है 1.1 वोल्ट है, किसके लिए, ये हमारे पास जो सेल है इसके लिए 1.1 वोल्ट आता है। Then E cell is equal to 1.1 volt minus 0.059, और ये जो रिएक्शन है पर देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर 2 है। हमने क्या किया कि द मोलर कंसेंट्रेशन इज 0.01, ऊपर वाले में क्या है, ये 0.01 है log, ओके, और ये नीचे वाले में 0.1 है, तो ये 10 over 100 and that is 1 over 10, right? 1 over 10 means it is 1.1 volt minus 0.0591 over 2, that is log 1 minus log 10, that is minus 1. क्या जाएगा, 0 minus 1 minus 1, ये जाएगा plus, right? So 1.1 plus almost क्या है, 0.03 आता है, लीजिए ये बन जाता है 1.13 volt, 3 वोल्ट। इसे देखिए अगर यहां पर हमारे पास जो कैथोड है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सेल वोल्टेज बढ़ जाता है, राइट? अगर हम एनोड की कंसेंट्रेशन ज्यादा ले लें, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एनोडिक सोल्यूशन इज मोर देन द सेल वोल्टेज इज लेस, फिर वो कम हो जाती है। लेट्स सी अगेन कि हमारे पास क्या है, अगर आप इसे इधर देखिए कि जिंक
जो हमारे पास एनोड है, इट्स solution is 1 mole per liter and that of cathode is 0.1. यहाँ पर क्या होगा 1 divided by 0.1. This is a situation and this becomes, let's say, log 10 and log 10 means 1. तो क्या देगा भाई 1.1 minus 0.03, right? So 1.1 minus 0.03, तो 7 कितना है ये 1.07. So this is 1.07 वोल्ट. तो हम क्या करें कि अगर यहां पर एनोडिक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कैथोडिक कम है, then the cell voltage drops. Now suppose we go on changing the concentration of the two solutions, then in certain situations the reaction starts occurring in the backward direction. ये कब क्या होगा कि कैसे जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, वो फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो जाती है. और उसमें क्या होगा कैथोड becomes anode and anode becomes cathode. So that again depends on the concentration. Let's see. हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है इसमें देखिए प्लीज. तो हमने जो सेकंड एग्जांपल लिया है इसमें हमारे पास क्या है, ये एक कॉपर हमारे पास कैथोड की बजाय हमने यहां पर ये निकल कैथोड यहां पर लिया है इसमें, और जिंक एनोड की बजाय यहां पर कोबाल्ट हमारे पास क्या है एनोड का काम करता है. सो इन द सेकंड सेल कोबाल्ट इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एनोड and the nickel electrode is acting as cathode. So in this case E0 cell is equal to 0.03 volt. ये वैल्यू आती है इसमें ना, ठीक है. तो हम जब निकाल सकते हैं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी मदद से क्या हम इसका E0 सेल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है देखिए हमारे पास, अब ऊपर हमारे पास क्या है, ये कोबाल्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एनोड का काम कर रहे हैं. कि अगर कोबाल्ट यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 है, और जो हमारे पास निकल है आयंस, इसकी जो कंसंट्रेशन है लेट्स से वो 0.1 है. देन व्हाट इज योर ई सेल? ई सेल इज इक्वल टू 0.03 क्या आएगा ना, हियर इज द E0 सेल. देन माइनस, देखिए प्लीज यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो माइनस 0.0591/2. और हमारे पास इसका जो लोग है तो उस लोग की वैल्यू क्या आएगी यहां पर. अब इसमें एनोड हमारे पास क्या कोबाल्ट है, ये 1 है, सो 1 तो लोग 10, तो ये हमारे पास कितना जाता है 0.01 माइनस 0.03, ठीक है. तो यहां पर भी क्या है, ये हमने कहा पे देखिए इसमें कोबाल्ट हमारा एनोडिक है और कोबाल्ट क्या 1 है, हमने यहाँ पर 1 लिया, ये पॉइंट यहाँ पर 1 है तो 10 ऊपर जाएगा, log 10 हमारे पास क्या 1, ये 2 यहाँ पर है, सो ये 0.0 हमारे पास क्या हमने इसको 6 कह दिया, 0.06 डिवाइडेड बाय 2, सो 0.03. सो E0 cell is equal to 0 and this is the equilibrium position. This is the equilibrium पोजीशन. इस केस में यहां पर ये इक्विलिब्रियम होगा कि जब क्या है कोबाल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, निकल की 0.1 मोल पर लीटर है. अब अगर हम क्या है इसके हमने कह रहे हैं यहां पर ये 0.1 था, अगर यहां पर क्या है हम इसको 0.1 ले लेंगे और इसको 0.001 ले लेंगे, ये log 10 बन जाएगा दोबारा, फिर log 10 1 होता है, फिर वही सिचुएशन रहती है. राइट. लेकिन अगर हम क्या करें यहां पर देखिए इसको क्या करेंगे, ये 0.001 ले लेंगे ऊपर एनोडिक में, लेट्स से देखिए इसमें 0.001 डिवाइड बाय 1, राइट. व्हाट इज सिचुएशन? दिस इज योर redox reaction and this is the anodic concentration 0.001 मोल पर लीटर. नीचे क्या है, इट इज 1 मोल पर लीटर. तो हमारे पास क्या आ जाता है इस तरह से, यस देखिए प्लीज, it is 1/1000, right?
So log 1 0 माइनस log 10 पावर 3, ये हमारे पास क्या है, नीचे हमारा फेजर था, तो ये -3 आएगा यहाँ पर, तो ये -3, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 3/2, राइट। यहाँ पर क्या द्वारा फिर ये हमारे पास जो एसएलएसटी वोल्टेज बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या एनोड की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम कर दी है। अगर हम कैथोड, अगर इसको हम उल्टा कर दें, अब ये उल्टा क्या करेंगे, देखिए प्लीज, लॉग हमारे पास ये 1 मोल पर लीटर, अभी क्या 0.001 मोल पर लीटर है। जो कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड इज 1 मोल पर लीटर, दैट इज ऑफ the concentration of anode is, that is 1 mole per liter, that of cathode is 0.001, ये ऊपर क्या जाएगा, it is 10/3, right, ये जगह हमारे पास 3/2, ये हमारे पास क्या माइनस अब यहाँ पर ना, ओके 3/2। अब ये देखिए प्लीज, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है किसकी, सेल की। नेगेटिव मतलब क्या है, रिएक्शन डज नॉट अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन कैन अकर इन द backward direction. So in this way, by taking different concentrations of the electrodes of a cell, we can prove that the cell voltage is mainly decided by the concentrations of the two solutions of the electrodes of which the cell is made up of. So at the equation is known as the Nernst equation. जो मैंने इक्वेशन लिया है, इसको क्या बोल रहे हैं, Nernst equation, और इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। नमस्कार।